اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج الحمدللہ میں پونا پہنچ چکا ہوں۔ یہاں اس وقت جامعۃ الصالحات جو کونڈوا میں لڑکیوں کا بڑا ادارہ ہے، قاری ادریس صاحب جمعیت علماء کے صدر ہیں، ان کے مدرسے میں ہوں، اور آج اسی پونا شہر میں جو سب سے بڑی مسجد ہے یہاں کی، کوثر باغ میں جمعہ کا میرا بیان ہوگا 1:30 بجے سے لے کر 2 بجے تک، اور یہیں پر خطبہ جمعہ اور نماز میں پڑھاؤں گا۔ پونا شہر اور آس پاس کے لوگ اس اعلان کو ضرور سنیں اور ضرور پہنچنے کی کوشش کریں۔ تو آج جمعہ کا بیان کوثر باغ مسجد پونا میں ہوگا، اور جمعہ کے بعد 3 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک مدرسہ جامعۃ الصالحات کونڈوا میں خواتین میں، عورتوں میں انشاءاللہ اصلاحی بیان ہوگا۔ آپ دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو میرے اس سفر کو کامیاب فرمائیں۔ اور بعد نماز مغرب یہاں پر ہمارے دلشاد بھائی ہے جو اتر پردیش کے رہنے والے ہیں، ان کی ایک بڑی یہاں پر 2-3 بڑی بیکری ہے، اور آج ان کے ایک نئے شو روم کا یہاں پر کونڈوا میں افتتاح میرے ہاتھوں سے ہونے جا رہا ہے۔ اسی کے لیے خاص طور سے انہوں نے مجھے بلایا بھی ہے۔ تو میں پونا کے سفر پر ہوں، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے سفر کو آسان فرمائے، کامیاب فرمائے۔ آئیے آواز کے ذریعے سے ہی میں آپ تک خبریں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ گزشتہ کل ناگپور سے ہمارے رپورٹر شہباز اختر نے بتایا کہ کانگریس کی ایک مہا ریلی ناگپور میں ہوئی۔ اس ریلی میں کانگریس پارٹی کے تمام ذمہ داران موجود تھے۔ کانگریس نے یہاں کھل کر طاقت کا مظاہرہ کیا اور یہ کہا کہ بھگوا خیمے کو اس کے گڑھ میں چیلنج ہیں تیار ہم کا نعرہ کانگریس نے لگایا۔ کانگریس نے 2024 کے انتخابات کے لیے بگل بجا دیا ناگپور سے۔ راہل گاندھی نے پارلیمانی الیکشن کو نظریات کی لڑائی قرار دیا اور جیتنے کا عزم ظاہر کیا، اور یہ کہا کہ اگر ہم جیتتے ہیں تو ذات پر مبنی سروے ہم کرائیں گے اور نیائے انصاف کو ہم قائم کریں گے۔ کانگریس نے اپنے 139ویں
यौम तासीस के मौके पर नागपुर में तारीखी महा रैली के जरिए 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए अपनी मुहिम का बिगुल बजा दिया है। इस महा रैली के लिए नागपुर का इंतखाब बेवजह नहीं किया, बल्कि नागपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है और आजादी के बाद चंद मौकों को छोड़कर कांग्रेस ने ही यहाँ की पार्लियामानी सीट की नुमाइंदगी की है। 1920 में कांग्रेस के नागपुर सेशन में ही महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अदम ताउन की तहरीक का ऐलान किया था। आजादी के बाद 1959 में फिर कांग्रेस का नागपुर सेशन मुनक्किद हुआ, जिसमें 41 साल इंदिरा गांधी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदर मुंतखब किया गया। खित्ता विदर्भ के सबसे बड़े शहर नागपुर में हमेशा कांग्रेस का दबदबा रहा है और अब फिर 2024 के लिए नागपुर से ही कांग्रेस ने अपना इंतखाबी बुगल बजाने का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता कल हजारों की तादाद में यहां पर कार्यकर्ता और तमाम ही पार्टी के लीडरान मौजूद थे। कांग्रेस ने यहां नागपुर में खुलकर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुलकर दबंग अंदाज में यह कहा कि जमहूरियत का कत्ल करने वाले और जमहूरियत का मजाक उड़ाने वाले मोदी को सबक सिखाएंगे। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि कतर में जो 8 हिंदुस्तानी साबिक बहरिया अफसरान को फांसी की सजा सुनाई गई थी, खबरें आ रही है कि अब उनकी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो गई। कतरी अदालत से तफसीली तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया गया। हिंदुस्तानी वजारत खारिजा ने तस्दीक कर दी है और अब हतमी फैसले का इंतजार है। MEA ने इस सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए कहा कि हमने दोहरा ग्लोबल केस में कतर की अपील कोर्ट के आज के फैसले का नोटिस लिया है, जिसमें सजाओं को कम किया गया है। हमें तफसीली फैसले का इंतजार है। कतर में हमारे सफीर और दीगर हुक्काम अदालत में मौजूद थे। अहले खाना के साथ आज ही अपील की है। हम मुकदमे के आगाज से ही उनके साथ खड़े हैं। हम इस मामले को कतरी हुक्काम के साथ भी उठाना जारी रखेंगे। बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें अक्टूबर में कतरी अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से वांटेड लिस्ट में शामिल हाफिज सईद को हवाले करने का मुतालबा किया है। पाक मीडिया का यह दावा सामने आया है। हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई सरकारी बयान जारी नहीं हुआ है। मुंबई 26/11 के हमलों के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा का रहनुमा दहशतगर्द हाफिज सईद को भारत लाने की बातें हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तानी हुकूमत से दहशतगर्द हाफिज सईद की हवालगी का बाज़ाब्ता मुतालबा किया, ताहम हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई तस्दीक नहीं की गई है। वहीं ETV भारत ने अपने उर्दू विजन में जराए के हवाले से लिखा है कि हिंदुस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर लश्कर तैयबा के बानी और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की हवालगी की दरखास्त की है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। आप जानते हैं कि इजराइल दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी साबित हो चुका है और पूरी दुनिया देख रही है कि इजराइल से बड़ा आतंकवादी कोई नहीं। अब जाहिर बात है कि इजराइलियों पर जगह जगह हमले होने के खदशे हैं। हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में भी इजरायली सफारत खाने में अब सिक्योरिटी का खौफ मंडला रहा है। दिल्ली में फॉरेंसिक टीम को 2 दर्जन से जायद छुरे मिले हैं। नई दिल्ली में इसराइल के सफारत खाने के बाहर मंगल को होने वाले धमाके के बाद ताजा तरीन पेशरफ्त में फॉरेंसिक माहिरीन को जाए वकूअ से 2 दर्जन से ज्यादा छुरे मिले हैं, जो धमाके की नौइयत पर रोशनी डालते हैं। सरकारी ज़राए ने इंकशाफ किया कि यह एक कम शिद्दत का धमाका था जिसमें खाम बम का इस्तेमाल शामिल था। एक सीनियर FSL एहलकार ने कहा कि हमारी टीमों ने दूसरे दिन इलाके की मुकम्मल तलाशी ली और इलाके के इर्द गिर्द बिखरे हुए छुरों के मुताद्दद टुकड़े दरियाफ्त किए हैं। मजीद वजाहत करते हुए एहलकार ने बताया कि इब्तदाई मुशाहदात से पता चलता है कि कम शिद्दत के धमाके मुमकिन तौर पर खाम बम के इस्तेमाल की वजह से हुए हैं। लेकिन खैर, इजराइल को अब इजरायली सफारत खाने में सिक्योरिटी का खौफ सता रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में अब इजराइल को ऐसे ही खौफ सताएगा। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है देवबंद से। जी हाँ, जिस तालिब इल्म को देवबंद में गिरफ्तार किया गया था एक मदरसे से, उस तालिब इल्म के ताल्लुक से खबर आ रही है कि गिरफ्तार तालिब इल्म का किसी भी टेररिस्ट मूवमेंट, दहशतगर्द तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है। ATS ने लंबी पूछताछ के बाद आखिर उसे जेल भेज दिया। सोशल मीडिया पर पुलवामा हमला दोहराने की
पोस्ट डालने के इल्जाम में गुज़िश्ता रोज देवबंद से गिरफ्तार किए गए दारुल देवबंद के तालिब इल्म का किसी भी मुश्तबे तंजीम से किसी तरह का कोई राब्ता नहीं मिला है। ये बात पुलिस और एटीएस ने मुल्जिम तालिब इल्म से घंटों की पूछताछ के बाद खुद बताई। हालांकि मुकदमा कायम करके तालिब इल्म को जेल भेज दिया गया है। दारुल देवबंद में ज़ेर तालीम झारखंड के जमशेद नगर के सरायकेला के बाशिंदे तालिब इल्म अब्दुल मजहर तलहा ने मंगल के रोज सोशल मीडिया पर पुलवामा हमले से मुताल्लिक पोस्ट डाली थी, जिस पर पुलिस ने उस तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है। फिर भी उसे जेल भेज दिया गया है, मुकदमा कायम कर दिया गया है। जाहिर बात है कि अब उसकी जिंदगी को ऐसे ही सड़ाया जाएगा। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है कि प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के तकरीबन 7 एयरपोर्ट्स को उड़ाने की धमकी सामने आई है, जिसमें मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़ और अहमदाबाद शामिल है। यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुल्क के मुताद्दद एयरपोर्ट्स को बम धमाके से उड़ाने की धमकी दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नामालूम अफराद ने मेल करते हुए दिल्ली के अलावा मुल्क के 6 दीगर एयरपोर्ट्स पर बम धमाके करने की धमकी दी है। जराये के मुताबिक धमकी आमेज ईमेल में नामालूम अफराद ने कहा कि वे दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद के हवाई अड्डों को बम से उड़ाने वाले हैं। धमकी आमेज मेल में गुज़िश्ता 4 शंबे की रात मौसूल हुई है, जिसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियां चौकस हो गई है और हवाई अड्डों का मुआयना कराया गया है। खैर, इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, सुनहरी मस्जिद को लेकर फिर खबर आ रही है। आप जानते हैं कि सुनहरी मस्जिद पर यूं समझिए कि भगवा आतंकवादियों की नजर है, और ऐसे नहीं बल्कि 40 मस्जिदों पर भगवा आतंकवादियों की नापाक नजरें पड़ी हुई है और मुल्क का माहौल ये खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी 2024 के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। 2024 को जीतने के लिए ऐसे ही माहौल खराब किया जाएगा। लेकिन खैर, सुनहरी बाग मस्जिद के मामले में जमात इस्लामी हिंद ने अदालत से रुजू किया है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुनहरी मस्जिद को मुनहदिम किए जाने की जो तजवीज दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पेश की है, असदुद्दीन ओवैसी ने भी उसकी मुखालिफत की है। एनडीएमसी को खत लिखा है और कहा है कि मस्जिद वक्फ की जायदाद है, इसे हेरिटेज कमेटी के फैसले से हटाया नहीं जा सकता है। आपको याद होगा कि सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने के लिए दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बाकायदा लोगों से राय मांगी है, मशवरा मांगा है, तजवीज मांगी है और एकदम घटिया किस्म की बात कही है कि ट्रैफिक की तंगी के लिए सुनहरी मस्जिद को हम हटाना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? तो सबकी ये राय है कि ये नीच हरकत न की जाए। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें। नाज़रीन, महाराष्ट्र के सतारा से दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है कि जिस्मानी कमजोरी को किसान ने कैंसर समझ लिया और इकलौते एक बच्चे की जान ले ली। न्यूज पोर्टल से मिली खबर के मुताबिक कैंसर से मुतालिक गलत फहमियों और गैर तस्दीक शुदा मालूमात ने महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक गांव में एक 12 साला लड़के की जान ले ली है। रिपोर्ट के मुताबिक 23 दिसंबर को सतारा तहसील के कोरे गांव के ह्यूरे गांव में एक लड़का खेतों में मुर्दा पाया गया। मकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस ने पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस को अपनी तफ्तीश में जो कुछ मालूम हुआ वो हैरान कुन बात है। दरअसल गांव का एक किसान अपने जिस्म में कमजोरी महसूस कर रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो कैंसर में मुब्तला है, तो उसने अपने 12 साला बेटे को इस खौफ से मार डाला कि कहीं बच्चा भी उस बीमारी की चपेट में ना आ जाए। पुलिस के मुताबिक किसान इस बात से भी परेशान था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके बेटे की देखभाल कौन करेगा। पुलिस ने एक 45 साला किसान को अपने नाबालिग बेटे के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के पूना शहर से हमारे रिपोर्टर हाफिज मौलाना शुएब अंसारी
نے خبر دی ہے کہ پونا میں ماں کے سامنے ایک چھوٹا اس کا بچہ کچل گیا. بھڑکی ہوئی بھیڑ نے، مشتعل ہجوم نے آخر ڈمپر کو آگ لگا دیا. نیوز پورٹل سے ملی خبر کے مطابق پونے کے ہڑپسر علاقے میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے. ایک ڈمپر نے ایکٹیوا کو پیچھے سے ٹکر مار دی جس میں بچہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ ماں شدید زخمی ہو گئی. یہ واقعہ بدھ کی شام ہڑپسر میں پیش آیا. تیز رفتار ڈمپر نے ایکٹیوا کو زور سے ٹکر ماری. اس حادثے میں بچے کی جگہ ہی پر موت ہو گئی. موٹر سائیکل پر سوار بچے کی ماں شدید زخمی ہو گئی. زخمی ماں کو علاج کے لیے قریبی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے. حادثے کے بعد ڈمپر ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا لیکن مشتعل ہجوم نے ڈمپر کو آگ لگا دی. واقعے کی اطلاع ملتی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میں نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے ممتا بنرجی کو لے کر، دیدی کو لے کر. جی ہاں، انڈیا اتحاد کے درمیان سیٹوں کی تقسیم کو لے کر قیاس آرائیوں کے درمیان گزشتہ کل وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے صاف لفظوں میں کہا کہ پورے ملک میں انڈیا اتحاد ہی کام کرے گا، اور یہ بھی کہا کہ بنگال میں ترنمول کانگریس ہی بی جے پی کو سبق سکھا سکتی ہے اور بنگال میں ترنمول کانگریس اپنے انداز میں بی جے پی کو سبق سکھائے گی. انڈیا اتحاد کے درمیان سیٹوں کی تقسیم کو لے کر قیاس آرائیاں چل رہی ہے اور وہیں پر بی جے پی کی جانب سے غلط خبریں بھی چلائی جا رہی ہے، لیکن بھگوا خیمے کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے تمام ہی اپوزیشن پارٹیاں ایک منچ پر آ گئی ہے جس کا نام دیا گیا ہے کہ انڈیا اتحاد، بھارت الائنس، اور ناگپور سے ہیں تیار ہم کا نعرہ لگا دیا گیا ہے اور انتخابی بگل بجا دیا گیا ہے.